education. Then he became the associate professor and professor in education in 2015. Participants, his specializations as far as is concerned, pedagogy of biology, science education, research methodology, teacher education are the specialization of today's resource person. Research area covers science education, child development and learning, and teacher education. Sir has published 12 books, in which important book I will name here, that ICT integration in education, teaching and teacher education in India, pedagogy of science, inclusive education, and others a book. Sir has presented more than 50 papers in national and international conferences and seminars, and he has already published 64 research papers in various national and international journals of repute, 15 chapters, I will say the quality chapters in edited books, and 16 blogs and chapters in various open and distance learning, self-learning material in both language, that is English and Urdu. He has already done on 7 research projects funded by various national and international bodies. Sir is also have a long list of administrative contribution in his career, that he was the principal of Jamia Senior Secondary School for 2 years, program coordinator of IGNU at Jamia Millia Islamia, member of academic audit team IQAC, member of annual report committee, elected member of academic council Jamia Millia Islamia, and coordinator of other so many courses and programs. He has successfully supervised more than 20 PhDs, I would say doctoral thesis, and more than 30 dissertation at PG level. And he also delivered 16 lectures on YouTube. If you will just search on YouTube with his name, that Professor Jasim Ahmad, Jamia Millia, you will find his YouTube lectures, and I think you will be very much enlightened with his lecture. Even though we are going to listen and hear Professor Jasim Saab. Apart from these, if you really wish to know, you can visit on the website of Department of Teachers Training and Non-Formal Education, Jamia Millia Islamia, and you will find a detailed curriculum vitae of Professor Jasim sir. More importantly, apart from these academic as well as administrative qualities of Professor Jasim sir, as much as I personally know, he is a very generous and supportive, nice person as far as academics of today is concerned. Sir, thank you very much for joining with us. With these words, participants, I would like to request sir kindly speak today's topic, that is holistic and multidisciplinary education. Thank you very much, sir. Now the mic over to you, sir. Thank you so much, Aftab Sahab. Thank you very much for inviting me to this particular program and have an interaction with the participants, with the colleagues of different universities. Am I audible? There is no any issue of voice? Audible? I am audible to all? Yes, sir. Yes, sir. Okay, thank you. Because of some, electrical issues, there is no light in one of the phase, and so I will not be in a position to share my slides with you. But I'm going to discuss in detail about the topic of today's discussion, as Dr. Aftab Sahab has announced, and there must be, the schedule must have been shared that the topic of this session is holistic and multidisciplinary education in the light of NEP 2020. So the biggest, thing which comes to our mind that what was the need for a discussion and deliberation and inclusion of this particular, theme into the National Education Policy 2020. Why it was required to take care of, why it was required to be included in the NEP document and make it a policy that education should be holistic and multidisciplinary. Why? This is the biggest question which comes to my mind. Because to my understanding, as a student of education, whenever we talk about education is always holistic in nature. तालीम का मतलब बार बार बात करते हैं, तालीम का मतलब ही है कि वो होलिस्टिक होना चाहिए और होलिस्टिक होता रहा है, होना ही चाहिए होलिस्टिक। जब भी शिक्षा की बात आती है, तालीम की बात आती है, एजुकेशन की बात आती है, तो एज ए पेरेंट, एज ए गार्जियन, एज ए कॉमन मैन ऑफ द सोसाइटी, एज ए member of the civil society, we all think
about the scope of education, about the outcome of education, about the impact of education that we want to see on the society, upon the individuals who are going for education. हम क्या चाहते हैं, तालीम लोगों के अंदर क्या तब्दीली लाए, शिक्षा से क्या परिवर्तन आए लोगों के अंदर, समाज के अंदर, माशरे के अंदर, सोसाइटी के अंदर, नेशन के अंदर क्या तब्दीली आए, क्या परिवर्तन आए, वो हम जानना चाहते हैं, वो देखना चाहते हैं. इसलिए हम एजुकेशन बच्चों को देते हैं. और कोई भी राष्ट्र, कोई भी नेशन जो एजुकेशन का इंतजाम करता है, जो मैनेज करता है एजुकेशन को, एक सिस्टम डेवलप करता है, देयर इज ऑलवेज सम बिगर एम्स ऑफ एजुकेशन. हमेशा एक मकसद होता है तालीम का. और जब उसके मकसद पर गौर करेंगे आप, उसके एम्स पर गौर करेंगे आप, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव पे गौर करेंगे, एज ए होलिस्टिक एम्स ऑफ एजुकेशन बात करेंगे, उस पर जब देखेंगे तो आपको समझ में आएगा. और हम सब चूंकि यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, वी ऑल नो दैट एजुकेशन शुड ऑलवेज बी होलिस्टिक इन नेचर. लेकिन सवाल यह है कि इसको होलिस्टिक टर्म देने की क्या जरूरत पड़ेगी एनईपी 2020 के अंदर. ये सबसे बड़ा मुद्दा है, सबसे बड़ा इशू है जिस पर गौर करने की बात है. तो अब इसको समझने के लिए हमें ये समझना होगा, ये देखना पड़ेगा कि एजुकेशन से हम क्या चाहते हैं और लोग क्या चाहते हैं, हमारा नेशन क्या चाहता है, हमारे समाज के लोग क्या चाहते हैं, पेरेंट्स क्या चाहते हैं जो बच्चों को एजुकेशन के लिए स्कूल भेज रहे हैं, कॉलेज भेज रहे हैं, यूनिवर्सिटी भेज रहे हैं, वो बच्चों की ज़िंदगी को कैसे देखना चाहते हैं, समाज को कैसे तब्दील होते हुए देखना चाहते हैं, माशरे को कैसे बदलते हुए देखना चाहते हैं, तालीम क्यों दे रहे हैं वो, है ना. तो जब उस पर गौर करेंगे तो आपको 2-3 बातें जो खास तौर पर नज़र आएंगी, वो ये नज़र आएगी कि तालीम का जो किरदार है, शिक्षा का जो रोल है ना, वो क्या होना चाहिए, तालीम के जरिए क्या तब्दीली आनी चाहिए. अगर ये कहें इनडायरेक्टली हम तो शायद ज़्यादा बेहतर होगा. व्हाट वी एक्सपेक्ट फ्रॉम एजुकेशन. हम शिक्षा से क्या उम्मीद करते हैं, क्या अपेक्षा करते हैं, तालीम क्या लेकर आएगा, समाज को क्या देगा, हमें क्या देगा, हमारे बच्चों को क्या देगा, हमारे माशरे को क्या देगा. वो चीज़ें अगर दे पा रही है तालीम, दे पा रहा है अगर एजुकेशन, इसका मतलब एजुकेशन ठीक ठाक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है. लेकिन जो एक्सपेक्टेशन है अगर वो फुलफिल नहीं कर पा रही है हमारी एजुकेशन, तो इसका मतलब है कि हम सबको एज ए स्टेक होल्डर ऑफ एजुकेशन वी नीड टू थिंक अबाउट दैट. हाँ, और शायद हमें लगता है कि एनईपी के जो पॉलिसी मेकर थे उनके दिमाग में ये बात थी और उन्हें ऐसा लगा कि शायद एजुकेशन का जो रोल प्ले होना चाहिए वो शायद नहीं हो पा रहा है. हम कहते तो हैं कि एजुकेशन होलिस्टिक है, लेकिन एक्चुअली में इन प्रैक्टिकल होलिस्टिक है नहीं. बच्चों का होलिस्टिक डेवलपमेंट नहीं हो रहा है. हम बच्चों को होलिस्टिक डेवलप नहीं कर पा रहे हैं. हमारे एजुकेशन होलिस्टिक करिकुलम हम शायद बच्चों को दे नहीं पा रहे हैं. और अगर थ्योरेटिकल होलिस्टिक करिकुलम है तो इन प्रैक्टिकल हम उसे शायद इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं. बच्चों का होलिस्टिक डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है, सर्वांगीण विकास बच्चों का नहीं हो पा रहा है. और इसलिए एनईपी 2020 ने अपना एक पूरा डॉक्यूमेंट में, पूरे पॉलिसी में एक चैप्टर ही अलग कर दिया. एक चैप्टर ही पूरा अलग कर दिया और उसका नाम दे दिया टुवर्ड्स ए मोर होलिस्टिक एंड मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशन. यानी कि ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ऐसी है जो हमारे शिक्षा तंत्र को, हमारे तालीमी निज़ाम को उस तरफ ले जाएगी जहां पर हम कह सकते हैं कि ये ज़्यादा होलिस्टिक होगा, है ना. निगेट नहीं कर रही है पॉलिसी कि होलिस्टिक नहीं है. एजुकेशन का मतलब होलिस्टिक ही होता है, होलिस्टिक ही एजुकेशन होनी चाहिए. लेकिन ये एहसास दिलाना चाह रही है पॉलिसी कि हमें और ज़्यादा होलिस्टिक होने की ज़रूरत है. ये चीज़ें हैं. तो अब इसकी रोशनी में मैं बात करूंगा, लेकिन उसके पहले ये देखने जो बात हम कर रहे थे कि क्या रोल हम करते हैं एक्सपेक्ट एजुकेशन से, वो 4-5 बड़े इंपॉर्टेंट रोल हैं जो एजुकेशन को प्ले करना चाहिए. अगर ये 5 रोल इंपॉर्टेंट जो मैं अभी डिस्कस करूंगा 1 by 1, ये 5 रोल अगर प्ले नहीं करता है एजुकेशन, तो अपने आप में एक बड़ा क्वेश्चन मार्क लग जाएगा एजुकेशन सिस्टम के ऊपर, हमारे तालीमी निज़ाम के ऊपर. और ये 5 रोल अगर इंपॉर्टेंट प्ले हो पा रहे हैं एजुकेशन से, है ना, तो इसका मतलब है कि हम लोग राइट ट्रैक पे चल रहे हैं और उसे स्ट्रेंथन करने के लिए ज़रूर रास्ते अपना सकते हैं. लेकिन अगर वो हम उन 5 रोल को प्ले ही नहीं कर पा रहा है हमारा एजुकेशन, इसका मतलब हम राइट ट्रैक पर भी नहीं है. हमें ट्रैक भी अपना ठीक करने की ज़रूरत है. वो चीज़ें हैं. तो अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट रोल एजुकेशन का क्या होना चाहिए. आप लोग सब एजुकेशन सब लोग टीचर हैं, यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं. हम सब का अपना एक परसेप्शन है, हम सब के अपने अपने आइडियाज़ हैं. अगर एज ए टीचर अगर हम सबसे पूछा जाए अलग अलग इंडिविजुअली, इनफरादी तौर पर, व्यक्ति तौर पर कि आप शिक्षा से क्या चाहते हैं, तालीम से आप क्या तवक्को रखते हैं, आपकी क्या अपेक्षा है शिक्षा से, चाहे वो स्कूल की एजुकेशन हो, चाहे वो यूनिवर्सिटी का एजुकेशन हो, चाहे आप
स्कूल से लेकर के यूनिवर्सिटी तक के तमाम हायर एजुकेशन की बात कर ले, पूरे शिक्षा निज़ाम से एज ए होल अगर आपसे कहा जाए कि आप 4, 5, 6, 7 जो भी पॉइंट्स बता सकते हैं, आप क्या चाहते हैं एज ए पेरेंट, एज ए सिटीजन ऑफ द कंट्री, एज ए मेंबर ऑफ द सिविल सोसाइटी, एज ए मेंबर ऑफ द इंटेलेक्चुअल ऑफ द कंट्री, आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं एजुकेशन से? तो शायद हमें लगता है कि यही 4 बातें शायद आप बताएंगे, जो मैं अभी 1 बाय 1 डिस्कस करूंगा। सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे पहले जो चीज़ आती है मेरे ख्याल में, वो एक्लचरेटिंग रोल है। एजुकेशन को हमेशा बच्चों को, इंडिविजुअल्स को, एडोलेसेंट्स को, जो स्कूल गोइंग हैं, कॉलेज गोइंग हैं, यूनिवर्सिटी गोइंग हैं, उनको एक कल्चर करना है, एक कल्चरेशन उनका होना है, उनके कल्चर को बेहतर बनाना है, एनरिच करना है, उनके जो परसेप्शंस हैं उनको रिफाइन करना है, उनकी सेंसिटिविटीज को इन्हांस करना है, जैसे कि उनका कल्चर एनरिच हो और नेशनल कोहेशन प्रोमोट हो। सबसे इंपॉर्टेंट नेशनल कोहेशन, राष्ट्रीय एकता की जो भावना है और इन प्रैक्टिकल अप्रोच है, वो डेवलप होना चाहिए। एक इंडिविजुअल कल्चर है, एक सोशल कल्चर है, एक नेशनल कल्चर है, इंडियन कल्चर जिसे कहते हैं आमतौर पे, उसको प्रिजर्व करना, उसको कंजर्व करना, उसको इन्हांस करना, उसको इनरिच करना, ये एजुकेशन का काम है। जब हम इंडियननेस की बात करते हैं, इंडियन कल्चर की बात करते हैं, इंडियन सोसाइटी की बात करते हैं जिसके हम हिस्सा हैं, तो इसका मतलब है कि हमारे कल्चर में, चाहे हम किसी भी बिलीफ को फॉलो करने वाले हों, किसी भी हिंदुस्तान के किसी भी इलाके के रहने वाले हों, वो एक जो यूनिफिकेशन का जो पावर है, यूनिफाइंग की कैपेबिलिटी है, यूनिफाइंग एट्रीब्यूट्स है, जो हम सबको एक करके रखता है, जिसको कहते हैं नेशनल कोहेशन, वो फीलिंग, वो एटीट्यूड, वो परसेप्शन और प्रैक्टिकली वो हमारी जिंदगियों में नजर आना चाहिए। अगर हमारा एजुकेशन इस एक्लचरेटिंग रोल को सही तरीके से प्ले करे और अपना इम्पैक्ट डाल पाए, अपना असर डाल पाए, अपना प्रभाव डाल पाए, राष्ट्रीय एकता की भावना पैदा हो और हमारा कल्चर एनरिच हो, तो शायद बहुत तरह की जो समस्याएं समाज में नजर आती हैं वो अपने आप दूर हो जाए, फिर नेशनल यूनिटी और नेशनल कोहेशन अपने आप पैदा हो। ये रोल अगर प्ले हो रहा है एजुकेशन से, जो हमारा एग्जिस्टिंग सिस्टम ऑफ एजुकेशन है, वेल एंड गुड, और अगर नहीं कर पा रहे हैं तो हमें कुछ सोचने की जरूरत है। दूसरा जो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है वो कॉम्बैटिंग रोल, कॉम्बैट करना। इंडिविजुअल को, शिक्षार्थियों को, तालिब इल्म को हमें इस लायक बनाना है शिक्षा के जरिए, एजुकेशन के जरिए, थ्रू एजुकेशन, that they must be in a position to, they must be enabled to fight against the destructive tendencies within the individual and destructive forces within the society। ये हम सब जानते हैं, है ना? हर इंसान के अंदर कुछ फोर्सेस होती हैं, नेगेटिव डिस्ट्रक्टिव फोर्सेस, डिस्ट्रक्टिव टेंडेंसीज होती हैं। वो एक इंसान के अंदर भी हो सकती है और इंसान के बाहर समाज के अंदर भी हो सकती है, दोनों चीजें हैं। कोई इंसान क्लेम नहीं कर सकता कि हमारे अंदर डिस्ट्रक्टिव फोर्सेस नहीं है और हमारे आसपास के माहौल में, हमारे आसपास की सोसाइटी में कोई डिस्ट्रक्टिव फोर्सेस नहीं है। लेकिन अगर हैं, या जितनी भी हैं, उनसे कैसे हम कॉम्बैट करें, हमें इस लायक बनाना है अपने नई जनरेशन को एजुकेशन के थ्रू। देयर आर लॉट्स ऑफ डिस्ट्रक्टिव tendencies and destructive forces within the society. For example, racism, casteism, regionalism, communalism, sectarianism, etc., etc. These are the forces that we perceive, that we experience in our society, in our community. The education, responsibility of education, the role of education is to make our young ones able to combat these destructive tendencies which are within them or out of them, in the environment, in the community, in the society, in the family. तो एजुकेशन अगर ये काम भी कर ले, दूसरा वाला रोल, एक कल्चरेटिंग रोल के साथ साथ कॉम्बेटिव रोल भी करे, तो हम कह सकते हैं एजुकेशन बहुत अच्छा काम कर रहा है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि क्या ये किस हद तक रोल प्ले कर पा रहे हैं, तो आपके पास कोई ना कोई जवाब जरूर होगा। जवाब अगर आपका पॉजिटिव है, यू मस्ट बी वेरी हैप्पी, वी मस्ट बी वेरी हैप्पी। लेकिन जवाब अगर आपको लगे कि नहीं, बहुत अच्छे से नहीं हो पा रहा है, कुछ वीक हम इस मामले में हैं या बहुत ज्यादा वीक हैं, बिल्कुल नहीं कर पा रहे हैं, इसका मतलब वी नीड टू थिंक अबाउट ब्रिंगिंग इम्प्रूवमेंट इन आवर एजुकेशन एज ए होल। ये चीजें हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है लिबरेटिंग रोल।
लिबरेट करना, इंडिविजुअल को, सोसाइटी को, कम्युनिटी को, माशरे को, समाज को लिबरेट करना। किस चीज से लिबरेट करना? बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। सबसे पहली या सबसे बुनियादी चीज तो ये है कि अशिक्षा जो होता है, इलिटरेसी, उससे अपना आप लिबरेट होता है आदमी। तो उसके लिए एडल्ट एजुकेशन का मुहिम हमारे पूरे देश में चल रहा है, और आज से नहीं, बहुत जमाने से चल रहा है वो। प्रौढ़ शिक्षा की नीति पूरी हमारी है। एडल्ट एजुकेशन, एक्सटेंशन एजुकेशन, हमारे पास यूनिवर्सिटी में अलग डिपार्टमेंट होता है, डिपार्टमेंट ऑफ एडल्ट एजुकेशन। किसानों को और ओल्ड एज के लोगों को साक्षर बनाना, साक्षर भारत का अभियान है, पूरी स्कीम है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, और उसके थ्रू बहुत सारा काम, हिंदुस्तान में बहुत काम हुआ, लाखों लोगों को साक्षर बनाया गया। एडल्ट लोगों को साइन करना सिखाया गया, पढ़ना सिखाया गया, लिखना सिखाया गया, कि आप जाकर के बैंक में जब जाएं, पोस्ट ऑफिस में जाएं, तो आप अंगूठा ना लगाने लगे, बल्कि आपको साइन करना आना चाहिए, बड़े बड़े साइन बोर्ड पढ़ने आना चाहिए, ताकि आप सरकार की पॉलिसी को समझ पाएं, आप पढ़ पाएं और उसका फायदा उठा पाएं। तो ये भी एक लिबरेशन है। सो द लिबरेटिंग रोल ऑफ एजुकेशन इज दैट द चाइल्ड एंड सोसाइटी नीड्स टू बी लिबरेटेड फ्रॉम इग्नोरेंस। अज्ञानता से उसको लिबरेशन देना है। समाज जितना अज्ञान होता है उतनी ही अंधविश्वासी होता है, उतनी ही गरीबी भी लाता है, और जब गरीबी आती है तो फिर दोबारा से अशिक्षा आती है। इकोनॉमिक्स के लोग, जो लोग आप लोगों में से इकोनॉमिक्स के लोग हैं, वो तो बहुत अच्छे से इस बात को समझते हैं। इलिटरेसी, पॉवर्टी में क्या रिलेशन है? इलिटरेसी बढ़ती है तो पॉपुलेशन भी बढ़ता है और पॉवर्टी भी बढ़ती है। इलिटरेसी जब कम होती है, एजुकेशन बढ़ता है, पॉपुलेशन अपने आप कंट्रोल होता है, और फिर गरीबी अपने आप कम होती है। एक विशियस साइकिल की तरह काम करता है। तो एजुकेशन का बहुत बड़ा रोल ये है, लिबरेटिंग रोल। इट मस्ट बी इन ए पोजिशन, इट मस्ट बी इन ए पोजिशन एंड ए टाइप ऑफ एजुकेशन दैट इट शुड लिबरेट child and society from ignorance, superstition, अंधविश्वास, and any kind of oppression जो हो सकता है, उन सबसे आजादी दिलाना, वो सारी की सारी चीजें। चौथा इंपॉर्टेंट रोल है इंटीग्रेटिव रोल, इंटीग्रेट करना बच्चे को, यंग वंस को, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स को, स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स को इंटीग्रेट करना सोसाइटी के साथ, समाज के साथ, माशरे के साथ, दुनिया के साथ। बेसिकली कहा जाए आजकल तो ग्लोबल सोसाइटी है, आजकल ग्लोबल सोसाइटी है, ग्लोबल सिटीजन की बात आजकल अब आ रही है, ग्लोबल सिटीजन। सो एजुकेशन मस्ट बी सच विच कैन इंटीग्रेट एन इंडिविजुअल विद द सोसाइटी, विद द कम्युनिटी, विद द वर्ल्ड। और जितना ज्यादा इंटीग्रेट करेगा, तो उसका मतलब करिकुलम उतना ही अच्छा है। आजकल हम लोग क्यों कहते हैं, जो GD गोयनका स्कूल और बड़े बड़े जो प्राइवेट जो स्कूल्स हैं, जो फेमस स्कूल हिंदुस्तान में है, चाहे वो मॉडर्न स्कूल हो दिल्ली का, या DPS हो, या हम केंद्रीय विद्यालय की बात करते हैं, हम नवोदय विद्यालय की बात करते हैं, जो बड़े बड़े स्कूल्स हैं, है ना, और जो इस तरह के स्कूल्स जो खोले गए, नेतरहाट वगैरह के स्कूल्स हैं। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्कूल इन द कंट्री, डिफरेंट टाइप्स। देयर आर रिप्यूटेड स्कूल्स इन द कंट्री। क्यों रिप्यूटेड हैं, अब क्यों वो बेहतर माने जाते हैं? अगर उन पर गौर करेंगे तो सबसे बड़ा चीज नजर आएगी, बच्चे के उसका करिकुलम ऐसा है, उनका सिलेबस ऐसा है, उनके टीचर के अंदर जो एक डिवोशन है, पूरा का पूरा करिकुलम ट्रांजैक्शन जो है, पूरा का पूरा सिस्टम है, वो सारा का सारा सिस्टम कुल मिलाकर के अल्टीमेटली ये 4-5 रोल प्ले करता है। और उसमें इंटीग्रेटिव रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो बच्चे को बिल्कुल ओवर्ट बना देता है, उसकी पर्सनालिटी को खुली शख्सियत का मालिक बनाता है उसको, है ना, एक्सट्रोवर्ट टाइप के बच्चे पैदा डेवलप कर रहा है वो। ऐसा बच्चा जिसके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई है, किसी 10, 20, 50, 100, 200 लोगों के बीच में कुछ बोलना हो तो घबराहट बिल्कुल नहीं है, कम्युनिकेशन उसका बहुत अच्छा हो जाता है, भय उसके दिल से बिल्कुल निकल जाता है, फेयरलेस हो जाता है, वो आइडियाज को शेयर करने में बिल्कुल आगे रहता है, ओपन अप, पर्सनालिटी को ओपन अप कर देता है। बेसिकली दुनिया की खबर उसको होती है, दुनिया में क्या हो रहा है। तो इंटीग्रेटिव रोल है, व्हाट इज गोइंग ऑन in and around the society and around the world, the student is well integrated. This is another very important role. और ये शायद हमें लगता है कि आज का टेक्नोलॉजी के दौर में, जो आज का टेक्नोलॉजी का दौर है ना, इंटरनेट का दौर है, सोशल मीडिया का दौर है,
5G टेक्नोलॉजी आजकल आ गई है, फास्ट टेक्नोलॉजी, व्हाट्सएप का दौर है, इंस्टाग्राम का दौर है, बहुत सारी टेक्नोलॉजी है। इस दौर में बच्चे बहुत ज़्यादा इंटीग्रेट हो रहे हैं बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी। तो टेक्नोलॉजी अपना रोल प्ले कर रहा है। बिकॉज ऑफ दिस टेक्नोलॉजी द इंटीग्रेटिव रोल ऑफ एजुकेशन इज बीइंग प्लेड प्रोबेबली इन ए गुड मैनर। सबसे ज़्यादा, सबसे अच्छा इंटीग्रेशन हो पा रहा है। लेकिन इंटीग्रेशन प्रॉपर हो, पॉजिटिव हो, इफेक्टिव हो, डायरेक्शनल हो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसको देखने की जरूरत पड़ती है सबको, और देखना चाहिए सबको। और पांचवा और आखिरी सबसे इंपॉर्टेंट कहा जाए, बल्कि सब अपने आप में इंपॉर्टेंट है, तो सबसे इंपॉर्टेंट कहना तो मुनासिब नहीं होगा। ईच वन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ईच वन इज इंपॉर्टेंट, इक्वली इंपॉर्टेंट कैन से, बट हियर द लास्ट वन इज इकोनॉमिक रोल। इकोनॉमिक रोल, एजुकेशन मस्ट इनेबल लर्नर्स टू बी एबल टू अर्न लाइवलीहुड। आज की 2024 की का जो साल है, 21st सेंचुरी में, हमें लगता है कि इकोनॉमिक रोल पर सबकी नजर सबसे पहले होती है। सबसे पहले है ना। 3 इडियट्स में जैसे है ना, बच्चा पैदा होता है तो वो जो है ना, 3 इडियट्स के फिल्म में देखा होगा आपने, और फादर उसका डिसाइड कर लेता है इसको डॉक्टर बनाना है, इंजीनियर बनाना है, ये बनाना है, वो बनाना है। क्यों बनाना है डॉक्टर भाई, क्यों बनाना है इंजीनियर? दरअसल उनके दिमाग को पढ़ेंगे तो दिमाग में पैसा ही है, इकोनॉमी है, रिस्पेक्ट और डिग्निटी तो है ही, इकोनॉमी पहले आती है। स्कूल में तो ज्यादा 9th क्लास तक तो बच्चे अपना आराम से पढ़ते रहते हैं, उनको इस बात की फिक्र भी नहीं होती है। पेरेंट को फिक्र शुरू हो जाती है शुरू से ही। और इसलिए जो थोड़ा एडवांस फैमिली है, उनके यहाँ तो 7वीं 8वीं तक जाते आते बच्चे के बारे में बच्चा भी समझने लगता है कि हमें क्या करना है आगे। अब पेरेंट पढ़े लिखे हैं, उनको दुनिया की खबर है, उनको अगर एम्स डेवलप किया हुआ है तो उनको पता रहता है कि क्या करने वाला है बच्चा हमारा, किस तरफ जाएगा, है ना। मेडिकल की तरफ जाना है, इंजीनियरिंग की तरफ जाना है, IAS ऑफिसर की तरफ जाना है, सिविल सर्विस की तरफ जाना है, बिजनेस की तरफ जाना है, कहाँ जाना है। सो द इंटायर डिसीजन रिगार्डिंग द फ्यूचर ऑफ द चाइल्ड, फ्यूचर ऑफ द इंडिविजुअल इज बीइंग रिवॉल्विंग अराउंड द इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स। तो तालीम तो ऐसी होनी चाहिए, एजुकेशन ऐसा होना चाहिए जो बच्चे को इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट बनाए, इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट बनाए, है ना। दे मस्ट बी enabled to earn their livelihood after completing their education. एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद वो एजुकेशन, वो शिक्षा जो उसने हासिल की है, वो इस लायक बना दे कि जिसे कहते हैं हम इंडियन लैंग्वेज में अपने पैरों पे खड़ा हो जाए, वो अपने पैरों पे खड़ा हो, खुद अर्न करने वाला बने, फैमिली को चलाने वाला बने, और इकोनॉमिकली साउंड हो। बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब आप आज के भी हिंदुस्तान में देखिएगा आप, जब तो लोग BA कर रहे हैं, MA कर रहे हैं, PhD कर रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रहा है। उनकी डिग्री लेके घूम रहे हैं अपने फोल्डर के अंदर, एम्प्लॉयबिलिटी नहीं है। रीजन बहुत सारे इसके हैं, बहुत सारे फैक्टर्स हैं, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, उस पर एक अलग तरह से गौर करने की जरूरत है। लेकिन डिग्री और एजुकेशन, टीचिंग लर्निंग का पूरा प्रोसेस, पूरा का पूरा करिकुलम ऐसा होना चाहिए जिससे कि वो डिग्री, वो डिप्लोमा जो अचीव कर रहा है, जो अक्वायर कर रहा है, जो सर्टिफिकेट हासिल कर रहा है, वो उसको इनेबल करे उसके इकोनॉमिक रोल को इन्हांस करने के लिए। बहुत जरूरी है। इसलिए इसी रोल को सामने रखते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो स्किल इंडिया कैंपेन शुरू किया, स्किल इंडिया कैंपेन। हाँ, एजुकेशन मस्ट बी लिंक्ड विथ स्किल, मस्ट बी लिंक्ड। स्किल के साथ उसको रोको, स्किल के साथ उसको इंटीग्रेट करो। प्लेन एजुकेशन नहीं होना चाहिए, सिर्फ BA कर लिया, MA कर लिया आपने हिस्ट्री में, ज्योग्राफी में, पॉलिटिकल साइंस में, और आपके पास स्किल नहीं है। जाहिर सी बात है, सब लोग तो टीचर ही नहीं बनेंगे, सबको टीचर बनने का शौक भी नहीं होता है। बहुत सारे लोग इंटेलेक्चुअली बड़े साउंड होते हैं सब्जेक्ट में, लेकिन टीचर नहीं बनना चाहते फिर भी, तो फिर क्या करेंगे वो। इसलिए जो कन्वेंशनल करिकुलम है उसके साथ भी कहा गया कि नहीं भाई कोई ना कोई स्किल पढ़ाओ। और इसलिए देखा होगा आप लोगों ने NEP 2020 के तहत
तमाम हिंदुस्तान की यूनिवर्सिटीज में। तो 3 ईयर ग्रेजुएशन की डिग्री जो है वो 4 ईयर में कन्वर्ट हो रहा है। बहुत सारी यूनिवर्सिटी शुरू कर दिया है, बहुत सारी यूनिवर्सिटी सोच रही है शुरू करने का, कन्वर्ट करने का, कन्वर्जन है। अब 4 ईयर का जब देखिएगा करिकुलम, उसमें है स्किल इन्हांसमेंट कोर्सेज है हर क्लास के अंदर, बीए के हर ईयर के अंदर देखेंगे आप ग्रेजुएशन में कि कोर पेपर के साथ, मेजर और माइनर के साथ साथ स्किल इन्हांसमेंट के लिए अलग पेपर है, अलग पेपर है ना। वैल्यू एडेड कोर्सेज अलग है, सीबीसीएस में भी सारी चीजें थी। ओवरऑल देखा जाए तो ये सारा का सारा जो सिस्टम डेवलप किया जा रहा है, जिससे कि वो बच्चा जो है डिग्री हासिल करने के बाद इस लायक हो जाए कि लाइवलीहुड अपना अर्न कर सके। ये बहुत जरूरी है। जब तक ये बात नहीं होगी एजुकेशन के अंदर, तो एजुकेशन बहुत कारामद हो ही नहीं पाएगा। गांधी जी ने इस बात को बहुत पहले समझ लिया था। 1938 के अंदर 1938 के अंदर गांधी जी ने एक कॉन्फ्रेंस बुलाई थी वर्धा के अंदर, महाराष्ट्र में, आजादी से पहले की बात है। उन्होंने पूरे हिंदुस्तान से इंटेलेक्चुअल्स को बुलाया, एजुकेशनिस्ट को बुलाया, और उन्होंने कहा था कि भाई हमारे एजुकेशन को बदलने की जरूरत है। जबकि वो स्कूल एजुकेशन की बात तब कर रहे थे कि हमारा सिस्टम एजुकेशन का इंडिजिनस होना चाहिए और क्राफ्ट बेस्ड होना चाहिए, क्राफ्ट सेंटर्ड होना चाहिए, जिसको उन्होंने नाम दिया बुनियादी तालीम, जो बच्चे की बुनियाद को मजबूत करे। बुनियाद का मतलब सिर्फ एजुकेशनल फाउंडेशन नहीं, स्किल फाउंडेशन भी मजबूत करे, उसका पूरी बुनियादी शिक्षा, बेसिक एजुकेशन जो क्राफ्ट बेस्ड हो, स्किल बेस्ड हो। बच्चे को प्राइमरी लेवल पे भी, स्कूल के लेवल पे भी साइंस और सोशल साइंस और मैथमेटिक्स के साथ साथ कोई न कोई क्राफ्ट सिखाया जाए, कोई न कोई स्किल सिखाया जाए, कोई न कोई हुनर सिखाया जाए, कोई न कोई कला उसको सिखाया जाए, जिससे कि बच्चा 5वीं क्लास भी छोड़ के अगर जा रहा हो, स्कूल से ड्रॉप आउट हो रहा हो, 6ठी के बाद, 7वीं के बाद, 8वीं के बाद ड्रॉप आउट अगर हो रहा हो, तब भी वो स्कूल से ड्रॉप आउट होने के बाद भी इस लायक हो जाए कि वो अपना कारोबार कर सके, अपने कमाने खाने का जरिया ढूंढ सके, वो बरसरे रोजगार हो जाए, और फिर अगली आने वाली जनरेशन के लिए वो फाउंडेशन का काम करे, बुनियाद का काम करे, बुनियाद का पत्थर साबित हो। उस जमाने में चूंकि एजुकेशन में इंडिया बहुत, पता ही आपको, बहुत बुरा हाल था। स्कूल जाते बहुत कम लोग थे, सिलेक्टेड फ्यू जाते थे, सिर्फ बहुत कम लोग थे, और ड्रॉप आउट बहुत ज्यादा था, गुर्बती बहुत थी, भुखमरी बहुत थी, बीमारियां बहुत थी, गुलामी का दौर चल रहा था ब्रिटिश सरकार का। तो गांधी जी का आइडिया वहां से था, वो बेसिक एजुकेशन, बुनियादी तालीम, क्राफ्ट सेंटर एजुकेशन, स्किल बेस्ड एजुकेशन। बहुत कम लोग थे जो 10वीं क्लास पहुंचते थे, 10वीं क्लास। ग्रेजुएशन की बात तो छोड़ दी, ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन तो सिलेक्टेड फ्यू थे, बहुत कम, बहुत कम। 10वीं भी जो लोग कर लेते थे उस जमाने में, ब्रिटिश इंडिया के दौर में, अपने आप में, वो भी आज के पोस्ट ग्रेजुएट और पीएचडी होल्डर, पोस्ट डॉक्टर भी शायद लोग कहते हैं बहुत अच्छे हुआ करते थे। खैर वो दौर ही अलग था, है ना, स्पेशलाइजेशन एक अलग चीज है। एनीवे, सो दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल दैट एजुकेशन इज रिक्वायर्ड टू प्ले: कल्चरेटिंग रोल, कॉम्बेटिव रोल, लिबरेटिंग रोल, इंटीग्रेटिव रोल एंड इकोनॉमिक रोल। दीज आर द 5 रोल्स। ये 5 रोल अगर प्ले हो रहे हैं ठीक ठाक तरीके से, अगर सेटिस्फैक्ट्री लेवल पे एटलीस्ट क्या कहेंगे, अगर 100% तो बहुत मुश्किल है शायद, लेकिन हाँ अगर सेटिस्फैक्ट्री लेवल पे भी हो और इसका असर अगर समाज में नजर आए, बच्चों की जिंदगियों में नजर आए, उनकी लाइफ में नजर आए, तो फिर हम जरूर कह सकते हैं कि यस, एजुकेशन इज गुड, सेटिस्फैक्ट्री। इसको और इफेक्टिव बनाया जाए, इसको और ज्यादा बेहतर बनाया जा सकता है। लेकिन अगर ये 5 रोल ठीक से प्ले ही नहीं हो रहे हैं, अगर ये इश्यूज हैं, सेटिस्फैक्शन लेवल पे नहीं हो पा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि फिर एजुकेशन के पॉलिसी मेकर को सोचना पड़ेगा, इसको बेहतर करना पड़ेगा, उसके लिए रास्ते निकालने पड़ेंगे। शायद एनईपी 2020 के पॉलिसी मेकर्स को और उसके पहले जो ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर्स थे, उन सबको ये महसूस हो गया कि हमारे शिक्षा तंत्र को बेहतर करने की जरूरत है, हमारे तालीमी निज़ाम को बेहतर करने की जरूरत है, और एजुकेशन का रोल विच इज सपोज टू बी प्लेड बाय एजुकेशन एट ऑल लेवल्स, probably these roles are not being played in a satisfactory manner. Hence we need to bring remarkable changes in our education system, and that's why they came out with the idea of holistic and multidisciplinary education. Make education holistic.
and multidisciplinary in nature. कोई ये सवाल कर सकता था कि होलिस्टिक तो होता ही एजुकेशन, इसलिए चैप्टर 11 जो एनईपी 2020 का चैप्टर 11 है उसका टाइटल ही दिया टुवर्ड्स ए मोर होलिस्टिक एंड मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशन। मोर वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है, हालांकि मीनिंग इसका बहुत खास नहीं होता है, थोड़ा सा ज्यादा है। इसका मतलब है कि एनईपी पॉलिसी मेकर्स जानते थे कि एजुकेशन तो होलिस्टिक ही होता है, मल्टीडिसिप्लिनरी होता ही है ना, होता ही है, लेकिन शायद वो निकल के नहीं आ पा रहा है जिस तरह से निकल के आना चाहिए क्लासरूम के अंदर और कॉलेज के अंदर, यूनिवर्सिटीज के अंदर, स्कूल के अंदर, करिकुलम ट्रांजिशन के अंदर। इसलिए इसको फोकस करने के लिए कहा टुवर्ड्स मोर होलिस्टिक एंड मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशन। हमें तालीम को और ज्यादा होलिस्टिक बनाना है और ज्यादा मल्टीडिसिप्लिनरी बनाना है, जो प्रत्यक्ष रूप से नजर आए, जाहिर तौर पर नजर आए वो सारी की सारी चीजें। इसलिए कि जब तक हम होलिस्टिक नहीं बनाएंगे तब तक जिन परेशानियों से हम जूझ रहे हैं, जिन समस्याओं से हम जो है टकरा रहे हैं, जो इश्यूज हमको नजर आ रहा है एजुकेशन के अंदर, सोसाइटी के अंदर, कम्युनिटी के अंदर, न्यू जनरेशन के अंदर, उससे हम निपट नहीं पाएंगे। अनलेस वी हैव होलिस्टिक एजुकेशन, वी कांट हैव होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ द चिल्ड्रन, एंड ओनली होलिस्टिक एजुकेशन एंड होलिस्टिक डेवलपमेंट कैन गिव अस रेमेडी ऑफ द प्रॉब्लम्स दैट वी आर फेसिंग इन आवर कंट्री। कि जब होलिस्टिक डेवलपमेंट होगा बच्चों का, इसका मतलब कि इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट होगा उसके बॉडी का, माइंड का और सोल का। इसका मतलब होलिस्टिक का मतलब ये उसके बॉडी का, माइंड का, सोल का, तीनों का डेवलपमेंट हो, अब वो बैलेंस्ड हो, संतुलित हो, तवाजुन के साथ हो, मतवाजन तरीके से हो रहा हो, संतुलित तरीके से हो रहा हो। ये नहीं है कि आप इंटेलेक्चुअली बड़े साउंड हैं, बहुत साउंड हैं इंटेलेक्चुअली, आप सब्जेक्ट के एक्सपर्ट हैं, चाहे फिजिक्स के टीचर हैं या फिजिक्स के एक्सपर्ट हैं, आप केमिस्ट्री के एक्सपर्ट हैं, आप बायोलॉजी के एक्सपर्ट हैं, आप साइकोलॉजी के एक्सपर्ट हैं, ह्यूमन राइट्स के आप एक्सपर्ट्स हैं। ह्यूमन राइट को बड़ी लंबी लंबी तकरीर तो कर लेते हैं आप, है ना, लेकिन आप घर के अंदर किसी का राइट को का हनन कर रहे हैं। आप अपने जो आपके जूनियर्स हैं उनके राइट का आप हनन कर रहे हैं। आप सब्जेक्ट के बहुत बड़े एक्सपर्ट्स हैं, बहुत अच्छी एक्सपर्टीज आपके अंदर है, ज्योग्राफी की या हिस्ट्री की, मैथमेटिक्स की, नहीं, लेकिन आप पूरी क्लास के बच्चों के साथ जो एक सोशल रिलेशन डेवलप होना चाहिए वो शायद आप नहीं कर पा रहे। क्यों? इसलिए कि आपका खुद होलिस्टिक डेवलपमेंट नहीं हुआ है। So despite being very sound knowledge of your subject, you are not in a position to transact your class in an effective manner because you may be weak in social relations that is required to be developed in the classroom. आप बच्चों की सोशियोलॉजी को, बच्चों की साइकोलॉजी को समझ नहीं पा रहे हैं, और समझ रहे हैं तो शायद इसको हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। तो हो सकता है कि आप इंटेलेक्चुअली तो साउंड हो, माइंड के लेवल पे तो आप बहुत साउंड हैं, लेकिन फीलिंग्स के लेवल पे आप कमजोर हो, बिलीफ के लेवल पे आप कमजोर हो, रिलेशनशिप के लेवल पे आप कमजोर हो। इसका मतलब सोशियोलॉजी कमजोर हो गई आप। हो सकता है कि नॉलेज बहुत अच्छी हो, लेकिन क्लास में पढ़ाया कैसे जाता है, ब्लैक बोर्ड पर लिखा कैसे जाता है, चीजों को एक्सप्लेन कैसे किया जाता है, बच्चे की रोजमर्रा की जिंदगी से एग्जाम्पल कैसे दिया जाता है, ये सारी चीजें शायद आपकी वीक हो। स्किल जिसे कहते हैं, स्किल, टीचिंग स्किल जिसे कहते हैं हम लोग एजुकेशन में। इसलिए होलिस्टिक डेवलपमेंट, है ना, हर बच्चे के लिए जरूरी है। ए वेरी वेल बैलेंस्ड डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी ऑफ द चाइल्ड, हिज और हर बॉडी, माइंड एंड सोल, तीनों चीजों का। गांधी जी ने तब वर्धा कॉन्फ्रेंस में भी कहा था, उसके पहले लिखा भी था हरिजन के अंदर, बाय एजुकेशन आई मीन एन ऑलराउंड डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड एंड मैन, बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट। शिक्षा से हमारा तात्पर्य बच्चों के और लोगों के दिमाग का, हृदय का, आत्मा का और शरीर का विकास है, तीनों का, एक का नहीं, दो का नहीं, तीनों का बैलेंस्ड, मतवाजन, संतुलित, यही चाहा जा रहा है इस होलिस्टिक एजुकेशन से, होलिस्टिक लर्निंग से, होलिस्टिक डेवलपमेंट के जरिए। ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट, फिजिकल, सोशल, मेंटल, इंटेलेक्चुअल, इमोशनल, एथिकल, spiritual, all types of, all aspects of personality must be developed in a very balanced manner.
only then we can claim that the education that we are providing is holistic in nature. We must create a situation in the classroom. We must develop a curriculum of that sort, which equally develop the cognitive aspect of the personality, affective aspect of the personality, and psychomotor aspect of the personality. जो हम बात कर रहे थे, कॉग्निटिव का मतलब जिसका ताल्लुक दिमाग से है, ब्रेन से है, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट से है, अफेक्टिव जिसका मतलब जिसका ताल्लुक उसके फीलिंग से है, सोल से है, आत्मा से है, रूह से है, बर्ताव से है, बिहेवियर से है, आपके इमोशन से है, स्पिरिचुअलिटी से है, और साइकोमोटर जिसका ताल्लुक जो है स्किल से है, स्किल इनहांसमेंट, महारत उससे है. This is very important. That's why in para 11.3 of NEP 2020, para 11.3 NEP का ही डॉक्यूमेंट है. para 11.3 में जो NEP लिखता है वो मैं बताता हूँ आपको, खुद क्लियरली लिखते हैं. ये होलिस्टिक एंड मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशन would aim to develop all capacities of human beings, all capacities, intellectual, aesthetic, social, physical, emotional, and moral in an integrated manner. Such an education will help develop well-rounded individuals that possess critical 21st century capacities in fields across the arts, humanities, languages, sciences, social sciences, and professional, technical, and vocational fields. An ethic of social engagement, soft skills such as communication, discussion, and debate, and rigorous specialization in a chosen field or fields. सब कुछ एक साथ लेके चल रहे हैं. दिस इज होलिस्टिक एजुकेशन, दिस इज मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशन. ये नहीं कि साइंस अलग चीज है, आर्ट्स अलग चीज है, ह्यूमैनिटीज अलग चीज है. बच्चे का जो इंटरेस्ट है उसके हिसाब से उसको पढ़ने दीजिए, उसको अपने हिसाब से ग्रो करने दीजिए, है ना. जिस तरह की मिट्टी होगी उसी तरह का पौधा ग्रो करेगा. हर तरह के पौधे के ग्रो के लिए उसकी रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है. कपास की खेती करेंगे अगर चिकनी मिट्टी के अंदर तो कभी ग्रो नहीं होगा, उसके लिए ब्लैक सॉइल चाहिए उसके लिए ब्लैक सॉइल. और बच्चे के अंदर कौन सी मिट्टी है ये हमको मालूम नहीं. कौन सा बच्चा किस तरफ ज्यादा आगे बढ़ेगा, कामयाब होने वाला है, उसके इंटरेस्ट क्या है, उसका रुझान किस तरफ होगा, एप्टीट्यूड, ये आपको मालूम नहीं है. क्योंकि इस मिट्टी को आप देख नहीं सकते, देख के पता नहीं चलेगा आपको. तो पता चलाने के लिए बच्चों को मौका देना पड़ेगा आपको. उसको हर एक चीज, हर तरह की एक्टिविटी के जरिए उसके टेस्ट का, उसके एटीट्यूड का, उसके एप्टीट्यूड का अंदाजा लगाना पड़ेगा कि वो बच्चा कहाँ ज्यादा कामयाब होने के चांसेस रखता है. इसका मतलब ये हुआ कि उसे फ्रीडम देना पड़ेगा कि वॉट एवर दे वांट टू स्टडी विद देयर इंटरेस्ट, लेट देम चूज दो सब्जेक्ट्स, लेट देम स्टडी. इसलिए नीति कहता है फ्लेक्सिबिलिटी इन एजुकेशन इज रिक्वायर्ड. फ्लेक्सिबल बनाओ एजुकेशन को, लचीला बनाओ. जो बच्चा पढ़ना चाहे पढ़ो दो. इसलिए स्टेम करिकुलम भी आजकल आ गया, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स. और स्टीम भी आया, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, आर्ट्स एंड मैथमेटिक्स. हाँ, सब कुछ को एक साथ लेके चलो सबको. बहुत सारे लोग कहते हैं कि शायद ऐसा करने से क्या एक्सपर्टीज को, स्पेशलाइजेशन को खतरा पैदा हो रहा है. क्या खतरा होगा या नहीं होगा? कुछ पहले जो लोग होते थे मैकेनिकल में एक्सपर्ट्स हैं, कोई इलेक्ट्रिकल में एक्सपर्ट्स हैं, कोई सॉइल साइंस में एक्सपर्ट्स हैं, कोई क्लाइमेटोलॉजी में एक्सपर्ट्स हैं, है ना, कोई थायोलॉजी में एक्सपर्ट्स है, कोई जो है प्लांट फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री का एक्सपर्ट्स है, वगैरह वगैरह अलग अलग सब्जेक्ट में एक्सपर्टीज हैं. तो एनईपी ये नहीं कह रहा कि एक्सपर्टीज की जरूरत नहीं है. एक्सपर्टीज भी डेवलप करो. जिस बच्चे को जिस डायरेक्शन में जाना है, एक्सपर्टीज में जाना है, वो भी डेवलप करें साथ साथ. लेकिन दरवाजा खुला रखें, खिड़की खुली रखें. जो चीज पढ़ना चाहता है उसको पढ़ने दें, दरवाजा को बंद नहीं करें. उसको दरवाजा खिड़की खुली रखेंगे, बच्चे को मौका देंगे पूरा, तो तभी उसकी सरगर्मी से, उसके एक्टिविटी से, वो किस तरह की किताबें पढ़ता है, किस तरह के सब्जेक्ट में ज्यादा इंटरेस्ट लेता है, किस तरह के सब्जेक्ट से ज्यादा सवाल करता है, ज्यादा पार्टिसिपेट करता है, ज्यादा उसको मजा आता है. इससे पता चलेगा उसका असली पर्सनालिटी. फिर आप उसको ग्रो करा पाएंगे उसके हिसाब से. पहले ही दरवाजा बंद कर दिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी. होती है प्रॉब्लम. कई बार बच्चे को, स्टूडेंट को, हम सबको, हमारे साथ भी, वो आपके साथ भी हो सकता है, वो आओ, पता चलता है ग्रेजुएशन कर लिया, एमए कर लिया, नौकरी में भी आ गए,
तब चाहते हैं यार ये सब्जेक्ट हमने पढ़ा नहीं, ये पढ़ते तो शायद और अच्छा करते, ज़्यादा मज़ा आता। कई बार महसूस होता है ज़िंदगी के किसी न किसी पड़ाव पे कि ये सब्जेक्ट ज़्यादा अच्छा होता अगर हम पढ़ते ग्रेजुएशन में या 12th क्लास में, इसमें ज़्यादा मज़ा आ रहा है, हम तो पढ़ने लगे कुछ और सब्जेक्ट हमसे कहा गया और या हमने लिया या फिर दोस्तों के प्रेशर में आके लिया या करंट प्रेशर में लिया या खुद फैसला जैसे किया शायद नहीं किया। आज हम ये सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, इस तरह की मैगजीन पढ़ रहे हैं, इस तरह का लिटरेचर पढ़ रहे हैं, तो इसमें ज़्यादा मज़ा आ रहा है। इसमें इट मीन्स यू आर डिस्कवरिंग योर इंटरेस्ट एट ए स्टेज विच इज ऑलरेडी गॉन। एक्चुअल स्टेज में अगर कर लेते, सही स्टेज में आइडेंटिफाई अपने आप को डिस्कवर कर लेते, तो शायद सही वक्त पे सही फैसला करते और ज़्यादा अच्छा कर पाते हैं। लेकिन ये जो डिस्कवरी हो रही है वो एक सही स्टेज के गुजरने के बाद हो रही है डिस्कवरी। अब जितना मरम्मत कर सकते हैं कर लीजिए, नहीं तो फिर जिंदगी जीना है उसी के साथ जो आपने अचीव कर लिया है। क्योंकि कई बार स्टेज गुजर जाता है कि अब आप मुड़ नहीं सकते, अब डाइवर्ट नहीं हो सकते आप। हाँ हाँ, हर कोई तो हर्ष भोगले जैसा नहीं हो सकता ना कि IITian होने के बावजूद हमको क्रिकेट की दुनिया में जाना चाहते थे। पहले हमने IIT कर लिया था लेकिन मज़ा नहीं आया, बहुत अच्छे स्कोरर रहे, बहुत अच्छे मार्क्स रहे, लेकिन नहीं, मज़ा नहीं आया। मज़ा तो हमें क्रिकेट में आता है जहाँ हम जाना चाहते थे। छोड़ छाड़ के फिर वही कमेंट्री कर रहे हैं, हर मैच में नजर आते हैं। हाँ? चेतन भगत का देखिए ऐसी IIT करने के बाद नॉवेलिस्ट हैं, असल इंटरेस्ट तो नॉवेल में था, है ना, लेकिन पेरेंट कुछ और चाहते थे। उस वक्त फैसला लेने के वक्त बहुत सारी चीज़ों को सोचना पड़ता है, अल्टीमेटली नॉवेलिस्ट बने वो। तो एनीवे देयर आर लॉट्स ऑफ एग्जांपल ऑफ दिस काइंड। तो यहाँ पर असल NEP कहता है कि होलिस्टिक एंड मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशन दीजिए, इसी के जरिए बच्चे का ग्रोथ और डेवलपमेंट भी प्रॉपर होगा, और होलिस्टिक एंड मल्टीडिसिप्लिनरी एक्टिविटीज के थ्रू ही हम बच्चों की असल जो उसकी सलाहियतें हैं, जो कैपेबिलिटीज हैं, जो पोटेंशियलिटीज है, उसको आप डिस्कवर भी कर पाएंगे, जिसको कहते हैं अंडरस्टैंडिंग द चाइल्ड, अंडरस्टैंडिंग द लर्नर जिसे कहते हैं, अंडरस्टैंड कर पाएंगे। अनलेस वी अंडरस्टैंड द लर्नर वी कैन नॉट गाइड देम इन ए प्रॉपर मैनर। इसलिए उनकी डिस्कवरी करनी जरूरी है। तो सच होलिस्टिक एजुकेशन, आगे लिखता है NEP कि सच होलिस्टिक एजुकेशन शैल बी इन द लॉन्ग टर्म द अप्रोच ऑफ ऑल अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स इंक्लूडिंग दोज इन प्रोफेशनल, टेक्निकल एंड वोकेशनल डिसिप्लिन। और इसलिए जो मैंने कहा कि NEP 2020 के गाइडलाइंस के तहत, UGC के गाइडलाइंस के तहत तमाम यूनिवर्सिटीज धीरे धीरे 3 ईयर बैचलर्स डिग्री प्रोग्राम को 4 ईयर बैचलर्स डिग्री प्रोग्राम में कन्वर्ट कर रही हैं, और होलिस्टिक एंड मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच के साथ, मल्टीपल एंट्री एग्जिट सिस्टम के साथ, जो सबका एक पार्ट है पूरा का पूरा, वो सारी की सारी चीजें। अब सबसे बड़ी समस्या, सबसे बड़ा इशू जो है वो है क्या है कि एक तीसरा एस्पेक्ट जो है होलिस्टिक एंड मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशन का, वो है इनका वैल्यूज पर ज्यादा फोकस, ह्यूमन वैल्यूज, एथिक्स, पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंटल एजुकेशन। ये है ना, ये सबसे बड़ा चैलेंजिंग काम है और सबसे मुश्किल है, और सबसे बड़ा जो इशू है, मेजर इशू है, वो आज की डेट में यही है। स्कूल इन्वायरमेंट, कॉलेज इन्वायरमेंट, यूनिवर्सिटी का इन्वायरमेंट, स्टूडेंट्स का इनडिसिप्लिन होना, अनरेस्ट होना, टीचर के साथ, टीचर स्टूडेंट का जो रिलेशनशिप है, स्टूडेंट का जो रिलेशनशिप है, स्टूडेंट और एडमिनिस्ट्रेशन का जो रिलेशनशिप है, जो ओवरऑल एक स्कूल का और कॉलेज का, यूनिवर्सिटी का, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन का जो क्लाइमेट होना चाहिए, एक एनवायरमेंट होना चाहिए, उसमें कहीं ना कहीं अपने आप में देयर इज अ बिग क्वेश्चन मार्क। और इसलिए हम लोग देखते हैं ना, स्कूलों के अंदर, कॉलेज के अंदर आए दिन बहुत सारी खबरें आती हैं, है ना, कि टीचर ने स्टूडेंट के साथ ये किया, स्टूडेंट ने टीचर के साथ ये किया, एक स्टूडेंट ने दूसरे स्टूडेंट के साथ ये किया, टीचर ने ऐसे बच्चे को मारा कि उसकी डेथ हो गई, उसके कान के पर्दे फट गए, उसका आंख से ब्लाइंड हो गया, वो अंधा हो गया, आंख खराब कर दी, वगैरह वगैरह। क्यों हो रहा है ये सब? वाई दिस सॉर्ट ऑफ न्यूज आर कमिंग नाउअडेज ऑन द रेगुलर बेसिस? ऐसा भी नहीं, कभी कभार, अक्सर बेशतर। अभी कुछ दिनों पहले, सालों से आ रहा है सब वो, है ना, कुछ स्टेट्स के बारे में कि भाई एक्चुअल टीचर, फिल्म भी बन गई उस पर, मेरे ख्याल में एक फिल्म भी देखा हमने इस पर, एक्चुअल टीचर नेतागिरी कर रहा है या बिजनेस कर रहा है, और उसके जगह पे कि दूसरा उसका भाई जो है वो टीचिंग कर रहा है स्कूल में, नाम उसका चल रहा है, साइन ये कर रहा है, काम वो कर रहा है। ये बड़ा कॉमन है,
बहुत हो गया इसे। ये हालत है हमारे वैल्यूज का, ये हालत है हमारे एथिक्स का, वो सारी की सारी चीजें। तो होलिस्टिक एंड मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशन के अंदर एक तीसरा इंपॉर्टेंट फोकस है वैल्यूज के ऊपर है। एनईपी के लिखता है वैल्यू सिस्टम को इंप्रूव करने के लिए, स्ट्रेंथन करने के लिए, है बहुत सारे वैल्यूज को इंडिकेट किया है, इसको मार्क किया है पॉलिसी के अंदर। तो सैलेंट वैल्यूज फॉर लाइफ, पुरुषार्थ की बात की है ना, जिसको हम लोग आमतौर पे कहते थे धार्मिक वैल्यूज कहते हैं, इस्तेमाल में माना जाता था, धार्मिक रिलीजियस वैल्यूज, पुरुषार्थ, है ना। महाभारत वगैरह हम लोग देखते थे बचपन में, आता है तो उसमें पुरुषार्थ की बात आती थी, धर्म, अर्थ, काम, मोक्षा, ये ट्रुथ। इसके अलावा एनईपी बहुत सारा बात करता है, ट्रुथ की बात करता है, कमिटमेंट को डेवलप करने की बात, ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, फॉरगिवनेस एंड लव, इमोशंस, एम्पैथी एंड एबिलिटी टू सेक्रीफाइस, ये सारी की सारी वैल्यूज को डेवलप करना बच्चों के अंदर। लाइफ स्किल्स की बात करता है, रेशनल थॉट को डेवलप करना है बच्चों को, करेज एंड रेजिलियंस को डेवलप करना, सिंप्लिसिटी को डेवलप करना है, टॉलरेंस को डेवलप करना, केयर, एक दूसरे का केयर करना, ये फीलिंग को डेवलप करना, इंक्लूसिवनेस, समावेशी शिक्षा की जो बात कर रहे हैं, इंक्लूसिव एजुकेशन की बात कर रहे हैं, समावेशी समाज की बात कर रहे हैं, एक ऐसा समाज जिसमें हर धर्म के, हर जो है बिलीफ के, हर जो है रीजनल डिस्पैरिटीज के बाद सब एक साथ रह रहे हैं, वो समावेशी, पूरा समाज समावेशी हो, इंक्लूसिवनेस, उसकी बात, उस पर फोकस है। तो उस पर तो एक पूरा का पूरा चैप्टर ही है, पूरा का पूरा चैप्टर बना दिया एनईपी ने, है ना, ये अलग चीज है। देन रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात, पीस एंड नॉन वायलेंस की बात, साइंटिफिक टेम्पर को डेवलप करने की बात, क्वालिटीज ऑफ ए गुड सिटीजन उसको डेवलप करने की बात, ये सारी की सारी बात एनईपी कर रहा है वैल्यूज के एस्पेक्ट के अंदर। ये होलिस्टिक एंड मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशन के थ्रू हमें इन वैल्यूज को डेवलप करनी है, इन वैल्यूज को डेवलप करना है। अब एक अपना आप एक बड़ा सवाल ये है कि ये कैसे डेवलप होगा? लिखने से तो डेवलप होगा नहीं, चाहे वो पॉलिसी के अंदर लिख दें या किताब के अंदर चैप्टर बना दें आप। हमारे नॉलेज में तो ये है कि वैल्यू एजुकेशन पर और पीस एजुकेशन पर बहुत सारा काम है, बहुत सारे नेशनल कॉन्फ्रेंस में बहुत सारी किताबें लिखी जा रही है पिछले 2500 साल से। एनसीईआरटी के अंदर तो एक पूरा का पूरा सेल है, वैल्यू एजुकेशन सेल, डिपार्टमेंट है, पूरा का पूरा सेंटर है, पूरा डिपार्टमेंट है। करिकुलम को डिजाइन करना, करिकुलम को डेवलप करना, किताबें तैयार करना, टेक्स्ट बुक तैयार करना, सप्लीमेंट्री बुक तैयार करना, कॉन्फ्रेंस, सेमिनार, पता नहीं क्या क्या करना, इतने दिनों से हो रहा है, लेकिन फर्क कोई खास पड़ा नहीं। कोई खास वर्ड में जबरदस्ती जोड़ रहा हूं मैं, कुछ नहीं पड़ा फर्क। समाज धीरे धीरे नीचे की तरफ ही जा रहा है। क्यों ऐसा हो रहा है? वाई देयर इज नो एनी इम्पैक्ट ऑफ ऑल दीज एफर्ट्स which is being done by SCRT, NCRT, universities and colleges, even ki UNESCO and UNICEF, why? UNO's bodies, why? इसका मतलब ये तो बिल्कुल तय है कि सिर्फ लिखने से नहीं होगा, और सिर्फ क्लास के अंदर बात करने से भी नहीं होगा, सिर्फ कॉन्फ्रेंस करने से, पीस एजुकेशन पे और वैल्यू एजुकेशन पे कॉन्फ्रेंस करने से, जो है एडिटोरियल जो है बुक लिखने से काम नहीं चलेगा। इसलिए कि वैल्यूज को अगर डेवलप करना है तो जिन वैल्यूज को डेवलप करना है वो वैल्यूज को समाज के अंदर बच्चों के सामने पेश करना होगा। वी नीड टू डेवलप, वी नीड टू प्रेजेंट एग्जाम्पल टू द न्यू जनरेशन। एग्जाम्पल प्रेजेंट करना होगा, एक मॉडल प्रेजेंट करना होगा क्लासरूम के अंदर, स्कूल के अंदर, कॉलेज के अंदर, यूनिवर्सिटी के अंदर। कौन कर सकता है? टीचर को करना होगा, सीनियर्स को करना होगा, जूनियर के लिए, टीचर को करना होगा, स्टूडेंट्स के लिए, हेड्स और डीन्स को करना होगा, उनके मातहत काम करने वालों दूसरे टीचर्स के लिए। एवरी इंडिविजुअल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेटिंग द टोन फॉर ए गुड वैल्यू सिस्टम। एवरी इंडिविजुअल, बिकॉज वैल्यूज आर नॉट टॉट, दे आर कॉट। ये बहुत मशहूर कोट है। पढ़ाने से नहीं होगा, एब्जॉर्ब कही, वैल्यूज आर caught, they are absorbed from the surroundings, from the environment, from the society, from the elders, from the people in the community. बच्चे जिस तरह का माहौल देखते हैं आसपास वैसा ही बनते हैं। बच्चे जैसे करते हुए लोगों को देखते हैं वैसा ही फॉलो करते हैं। बच्चे जिस तरह की भाषा घर में बोली जाती है वही भाषा बच्चे बोलते हैं, बोलना सीखते आते हैं अपने आप, जिसको हम कहते हैं मदर टंग। मदर टंग जिसे कहते हैं।
This is the common, way of learning new things. तो जिस तरह का वैल्यू, जिस तरह का बिलीफ सिस्टम, जिस तरह का ह्यूमन बिहेवियर बच्चे समाज के अंदर देखेंगे, उसी को ऑब्जर्व करेंगे, वो चीज है। इसलिए हमें इन चीजों को डेवलप करना पड़ेगा, तब जाकर के होगा। शुरू करना पड़ेगा हमें एज ए टीचर, एक माहौल क्रिएट करना पड़ेगा, मॉडल पेश करना पड़ेगा बच्चों के सामने। ओनली देन वी कैन एक्सपेक्ट द सेम फ्रॉम द यंग वंस। हम कुछ और करें, अब बच्चों से कुछ और करने को कहें, तो ये जिंदगी में कभी अचीव नहीं होगा। हम इनकम टैक्स की चोरी करें, अपने बच्चों के सामने अपने सीए को बैठाल करके डिस्कस कर रहे हैं कि चोरी कैसे की जाती है टैक्स की, कैसे हम अपना टैक्स बचाएं। हाँ, बचाना अच्छी बात है, बचाने के लिए सही रास्ते अपनाओ, बहुत अच्छी बात है, लेकिन चोरी करना गलत। एक ऐड आता था एनडीटीवी में, देख रहा था, तो बच्चा परेशान है, तो कि पापा बोलते कुछ और है ऑनेस्टी, और बात कुछ और कर रहे हैं, तो कैसे होगा ये इफेक्ट। और सिर्फ टीचर ही की बात नहीं है, बच्चा तो स्कूल में रहता है 7 घंटा 8 घंटा है, 6-7 घंटा है, फिर वो घर जाता है, फैमिली, पेरेंट्स को भी बनना पड़ेगा वैसा, सोसाइटी के अंदर लोग वैसे होना चाहिए, हमारे पॉलिटिकल लीडर्स को होना पड़ेगा उस तरीके का, सोशल जो हमारे सोसाइटी के बड़े लोग हैं उनको होना पड़ेगा। तो एवरी वन इज रिस्पॉन्सिबल इन दिस रिगार्ड। ऑफ कोर्स टीचर हैज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल, टीचर का रोल ही बड़ा इंपॉर्टेंट है ना, टीचर का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है। प्रोफेसर DS कोठारी ने कहा था 1964 में, जब ये पॉलिसी आई थी, 68 में पॉलिसी आई थी, 64-66 का कमीशन था, पहली सबसे बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो थी कोठारी कमीशन। उन्होंने लिखा, शुरुआत ही क्या था, नाउ द डेस्टिनी ऑफ इंडिया इज बीइंग शेप्ड इन इट्स क्लासरूम। भारत का भविष्य उसके क्लासरूम में निर्मित होता है। क्लासरूम में डेस्टिनी, हमारे पूरे देश का भविष्य जो है, उसका मुस्तकबिल, उसका फ्यूचर बनता है क्लासरूम के अंदर। हम क्लासरूम को जितना बेहतर बना लें, हमारा देश उतना ही बेहतर होगा। हमारा क्लासरूम जितना खराब होगा, हमारा देश उतना ही खराब होगा। इसलिए हम सबको, इंक्लूडिंग द गवर्नमेंट, हमें फोकस करना है अपने क्लासरूम को ठीक करने के लिए, चाहे वो स्कूल का हो, प्राइमरी स्कूल से लेकर के यूनिवर्सिटी एजुकेशन तक। वी नीड टू ब्रिंग इम्प्रूवमेंट इन द क्लासरूम, करिकुलम ट्रांजेक्शन, टीचर एटीट्यूड, टीचर बिहेवियर, स्कूल इन्वायरमेंट, स्कूल क्लाइमेट, कॉलेज इन्वायरमेंट, कॉलेज क्लाइमेट, यूनिवर्सिटी क्लाइमेट, इन सबको ठीक करना पड़ेगा, तब जाकर के कुछ इम्पैक्ट आएगा। ये बात भी कोठारी साहब ने एक बात कही थी उसी जमाने में। ही वॉज प्रोफेसर ऑफ फिजिक्स, आप में से बहुत लोगों को शायद पता हो। ही वॉज प्रोफेसर ऑफ फिजिक्स इन दिल्ली यूनिवर्सिटी, प्रोफेसर दौलत सिंह कोठारी, and he was given the charge to be the chairman of the national education policy 1964-66। तो 64-66 तक कमीशन ने काम किया, रिपोर्ट दिया, 68 में पॉलिसी आई, और देश का भ्रमण किया, देखा उन्होंने क्या हो रहा है। तब भी उन्होंने कहा था कि वी इन इंडिया, and not only in India, at the global level, 2 spirals are working simultaneously. One spiral is STP spiral, science, technology and productivity. So the country and the world is moving forward with a high speed because of science, technology and productivity. यूँ कह लीजिए कि साइंस, टेक्नोलॉजी और प्रोडक्टिविटी में हम बहुत तेजी से आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। हमारा समाज, हमारा देश, हमारा मुल्क और हमारे पूरा विश्व साइंस, टेक्नोलॉजी, प्रोडक्टिविटी में तेजी से बढ़ते चले जा रहे हैं। बढ़ा, बहुत तेजी से बढ़े हम लोग, है ना। और उसकी चरम पे हम लोग अभी आज के डेट पे चरम पे हैं, और चरम का कोई अंत है नहीं, कि लगातार टेक्नोलॉजी हमको और आगे ले जाएगी। अभी यहाँ बैठे हैं ना हम लोग, पता नहीं हिंदुस्तान के कितने स्टेट से आप लोग जुड़े हुए हैं। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ टेक्नोलॉजी। कितना आगे बढ़ गया, चांद पे चले गए। STP तो है, मिल्क है ना, सिल्वर रेवोल्यूशन, व्हाइट रेवोल्यूशन और ग्रीन रेवोल्यूशन, हिंदुस्तान में क्या क्या नहीं हुआ, बहुत सारी चीजें। STP तो है, तो एक STP स्पाइरल है जो हमको आगे ले जा रहा है, साइंस को, टेक्नोलॉजी, प्रोडक्टिविटी हमें आगे ले जा रहा है, हम उसको आगे ले जा रहे हैं। उन्होंने कहा दूसरा स्पाइरल भी काम कर रहा है एट द सेम टाइम, विच इज GHD स्पाइरल, ग्रीड, हैट्रेड एंड डिलूजन का स्पाइरल है। लालच, एक दूसरे से नफरत
और भ्रम की स्थिति, ये जो है GHD स्पायरल, ये इंसान को, समाज को धीरे धीरे नीचे की तरफ ले जा रहा है. सो वी आर, STP एंड GHD इज मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं. साइंस, टेक्नोलॉजी, प्रोग्रेसिविटी बहुत आगे की तरफ ले जा रहा है और आगे की तरफ बढ़ रहा है तेजी के साथ, और GHD स्पायरल जो है वो नीचे की तरफ समाज को लेकर चला जा रहा है. और इसलिए बिल्कुल नजर आता है, आज हमें लगता है कि शायद दौलत सिंह कोठारी साहब को उस जमाने में जो नजर आया होगा, आज अगर वो होते तो आप खुद उनको लगता है कि अच्छा बिल्कुल सही कहा था जो मैंने कहा था 68 में. आज बिल्कुल साफ जाहिर है, बिल्कुल साफ जाहिर है. सो NEP 2020 through this policy, through this document, through this chapter 11 is focusing on holistic and multidisciplinary education, कि हम वैल्यूज पर काम करें, वैल्यूज को इन्हांस करें. जब तक वैल्यूज नहीं आएगा जिंदगी के अंदर, तब तक एजुकेशन होलिस्टिक नहीं होगा. अब बच्चे का डेवलपमेंट होलिस्टिक नहीं होगा, बच्चे की लर्निंग होलिस्टिक नहीं होगी. और इसको लाने के लिए एजुकेशन को बनाना पड़ेगा मल्टी डिसिप्लिनरी. होलिस्टिक एजुकेशन को अचीव करने के लिए मल्टी डिसिप्लिन एक उसका रास्ता है, उसका एक रास्ता है मल्टी डिसिप्लिन होना. मेरे समझ में एक सब्जेक्ट के थ्रू आप नहीं बना सकते होलिस्टिक. बच्चे की लर्निंग करा ही नहीं सकते आप, लर्निंग इफेक्टिव हो ही नहीं सकती थ्रू सिंगल सब्जेक्ट टीचिंग, थ्रू आइसोलेटेड सब्जेक्ट टीचिंग, बिकॉज ईच एंड एवरी सब्जेक्ट इज interlinked with one another, integrated with one another. You cannot go one step forward in physics without mathematics. At many places, in many branches, you can say. ठीक है, प्रिंसिपल फिजिक्स है तो उसमें पढ़ा लीजिएगा बगैर मैथ के, लेकिन फिर भी मैथ कई जगह पड़ेगा आपको. जहां जहां डेरिवेशन है मैथ के बगैर नहीं होगा, जहां जहां कुछ सॉल्व करने बगैर मैथ की प्रॉब्लम सॉल्व करने बगैर मैथ के बगैर नहीं होगा. तो फिजिक्स इंटायरली डिपेंड्स ऑन मैथमेटिक्स. तो फिजिक्स का टीचर तो अच्छा टीचर जिंदगी में कभी नहीं हो सकता जब तक उसको मैथ भी अच्छी ना आती है. बायोलॉजी का टीचर मुकम्मल बायोलॉजी का के लिए तब तक अच्छा नहीं होगा जब तक उसको केमिस्ट्री नहीं आती हो. कैसे पढ़ाएगा कार्बोहाइड्रेट के बारे में अगर कार्बोहाइड्रेट की केमिस्ट्री को समझे हुए? कैसे पढ़ाएगा प्रोटीन का डाइजेशन के बारे में, कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन के बारे में, लिपिड्स के डाइजेशन के बारे में? कैसे पढ़ाएगा वो जब तक इनकी केमिस्ट्री नहीं आती हो? उनको नहीं पढ़ा सकता वो. तो सारे सब्जेक्ट एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, कोई ज्यादा इंटीग्रेटेड है, कोई कम इंटीग्रेटेड है. बट यू कैन नॉट फाइंड ए सिंगल सब्जेक्ट which is totally isolated from other subjects. There cannot be. There is not a single subject. हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता ऐसा. And so each teacher, every one of us, everyone needs to understand not only our own subject, but all those adjacent subject you can say, which are having a relationship with your subject. जिसके साथ ज्यादा रिलेशन है, ज्यादा एफिनिटी है, ज्यादा इंटीग्रेशन है, उसको ज्यादा समझना पड़ेगा ताकि आप क्लास में बच्चों को समझा पाए. ये तो हम नहीं कह सकते ना कि ये जब बच्चा ने एक सवाल कर दिया क्लास में, ये तो नहीं कह सकते ये तो जो तुमने पूछा है ये तो हमारे सब्जेक्ट का है नहीं, ये तो केमिस्ट्री का है, ये तो फिजिक्स का है, ये तो किसी और सब्जेक्ट का है, सर से पूछ लेना, मैडम से पूछ लेना. ये कहते तो टाल नहीं सकते आप. फिर आप टीचर हुए नहीं इफेक्टिव. वो मोरल भी डाउन होगा आपका, बच्चे के नज़र में भी रिस्पेक्ट अपने आप कम हो जाती है. अगर आप सवाल का जवाब अगर अक्सर रीड करके टाल दें कि अगली क्लास में बताएंगे, बुरी बात नहीं है, लेकिन हमेशा नहीं यूज नहीं कर सकते आप. एंड इफ वी नो द अदर सब्जेक्ट, द अलाइड सब्जेक्ट्स, वी कैन प्रूव टू बी ए गुड टीचर इन आवर क्लास थ्रू इंटीग्रेटेड टीचिंग. Through integrated teaching, or integration can be done with many things, with other subjects, with the society, with the community, with the daily life of the learner, with the newspaper, with the TV news, with the local environment, local climate, local weather conditions. So there are a lot of things to which the class and the topic which is being discussed can be integrated. And the more integration is done, the more better is the learning to happen in the classroom.
वो सारी की सारी चीजें। और जैसे ही आपने अपने सब्जेक्ट के साथ दूसरे सब्जेक्ट को इंटीग्रेट किया, मल्टीडिसिप्लिनरी हो गया, लाइफ के साथ किया, मल्टीडिसिप्लिनरी हो गया। इकोनॉमिक्स पढ़ाते हुए सोशियोलॉजी जरूरी है, बहुत जगह आपको काम आएगा। हाँ, कई बार तो आपको हैरानी होगी कि सोशल साइंस के सब्जेक्ट में नेचुरल साइंस भी घुस जाता है। कई बार सोशल साइंस के सब्जेक्ट में नेचुरल साइंस चला आता है, और टीचर के अंदर वो नेचुरल साइंस और जो वो एस्पेक्ट अगर है दिमाग में, समझा सकता है बच्चे को, तो वो उसके टीचिंग प्रोफेशन का की इंतहा होती है, वो एपेक्स होता है। बच्चे की नज़र में उसकी डिग्निटी और उसकी इज्जत दोबाला हो जाती है। हाँ? अगर वो ऐसे टॉपिक पे क्लास में डिस्कस करता है जो उसके सब्जेक्ट से रिलेटेड है, लेकिन है उसके सब्जेक्ट से बहुत दूर, और उस पर वो डिस्कशन कर रहा है। इसलिए देखा होगा आपके बच्चे, कई बार होता है कि साइंस का टीचर है और एटॉमिक एनर्जी कमीशन पे बात कर रहा है, तो ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन अगर वो वर्ल्ड वार 1, वर्ल्ड वार 2 के बारे में बात करता है, एक साइंस का टीचर उस वक्त की हिस्ट्री की बात करता है, उस वक्त की सोशियोलॉजी की बात करता है, उस वक्त की इकोनॉमी की बात करते हैं, ग्लोबल इकोनॉमी की, तो बच्चों को भी मजा आता है, टीचर को भी मजा आता है, और एक रिलेशनशिप जो डेवलप होता है क्लास के अंदर, वो अपने आप में बहुत बड़ी चीज होती है। हाँ, बहुत बड़ी चीज हो जाती है। ये जो पावर ऑफ इंटीग्रेटिंग सब्जेक्ट कंटेंट विथ अदर कंटेक्स्ट related to the society, to the community, to other subjects, to the daily life of the learner, ये चीजें जो बड़ी इंपॉर्टेंट है। एंड दिस इज मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशन, मल्टीडिसिप्लिनरी लर्निंग को डेवलप करती है, क्योंकि चिल्ड्रन लर्न थ्रू एसोसिएशन। बहुत सारी चीजें एसोसिएटिव लर्निंग होती है, एसोसिएट करते हैं बहुत सारी चीजें बच्चे, एक दूसरे को करते हुए देख करके वो भी आगे बढ़ते हैं, डिस्कशन के थ्रू आगे बढ़ते हैं। वाइगोट्स्की तो बात करता है ना, ले वाइगोट्स्की कहता है कि ये जो बच्चे हैं, लर्नर्स हैं, दे लर्न through 3 most important ways, and the first most important is social interaction. The more they interact with one another, the more they learn. तो क्लासरूम के अंदर टीचर और स्टूडेंट के बीच में इंटरेक्शन, स्टूडेंट के बीच में इंटरेक्शन, फ्रेंड्स के बीच में इंटरेक्शन, क्लास के अंदर हो, क्लास के बाहर हो, ये जो इंटरेक्शन है, सोशल इंटरेक्शन। दूसरी बात करता है कि वो इंटरेक्शन किसके साथ हो, कैसे लोगों के साथ हो, कैसे सब्जेक्ट के साथ हो, किस चीज के साथ हो, विथ मोर नॉलेजेबल अदर। MKO की बात करता है, मोर नॉलेजेबल अदर। अब मोर नॉलेजेबल अदर का मतलब क्या पता है? सिर्फ ये नहीं कि हम पढ़ते हैं BSc फाइनल ईयर में, तो हमारे लिए मोर नॉलेजेबल अदर तो सिर्फ MSc फर्स्ट ईयर वाला है, सेकंड ईयर वाला है, हमारे टीचर्स हैं। नो, ऑन एनी पर्टिकुलर टॉपिक योर जूनियर कैन बी द मोर नॉलेजेबल अदर। योर जूनियर, उससे भी सीख सकते हैं। तो सीनियर, जूनियर, कंप्यूटर, इंटरनेट, सर्च इंजिन, न्यूज़पेपर वगैरह वगैरह, ऑल दी आर मोर नॉलेजेबल अदर इन द आईज ऑफ ले वाइगोट्स्की। जो आपकी लर्निंग को इन्हांस कर सके, वो सब मोर नॉलेजेबल अदर है। उनके साथ इंटरेक्शन, उनके साथ। और तीसरी बात जो करता है वो वाइगोट्स्की कहता है कि जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, कि बच्चों को आप ऐसे जोन में रखो जो न तो वो पूरी तरह बेचारा उसको किसी तरह का कोई हेल्प नहीं मिले और सेल्फ डिपेंडेंट होकर के अकेले जो कर सकता हो सीख ले। वो एक तो वो स्टेज होती है, किसी बच्चे के पास सपोर्ट सिस्टम नहीं है, पेरेंट पढ़े लिखे नहीं है, उसके पास किताबें अच्छी नहीं है, कोई रिसोर्स नहीं है, तो जो क्लास में टीचर दे देते हैं, जो क्लास स्कूल की कॉलेज की लाइब्रेरी से जो किताबें मिल गई उसको पढ़ा और अपनी मेहनत करके अपने हार्ड वर्क से अपने सिंसियरिटी से जो कुछ सीख लिया उसने सीख लिया। उसके पास एडिशनल कोई हेल्प नहीं है, एडिशनल सोर्स नहीं है, एक तो वो बच्चा होता है। तो इस बच्चे के लिए भी नुकसान की बात है कि बेचारे कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं है, कोई इक्वेशन समझ में नहीं आ रहा है तो टीचर और बुक के अलावा कोई सोर्स नहीं है उसके पास। अब टीचर तो मिलेगा स्कूल के टाइम में, और अगर क्लासेस खत्म हो गई तब तो टीचर अवेलेबल भी नहीं है, तो जाहिर सी बात है कि उसका लर्निंग जो है कहीं ना कहीं चेक हो जाएगा, ब्रेक तो लगेगा उस पर।
अपनी कठिन मेहनत से जितना समझ सकता है कर लिया उसने, लेकिन थोड़ा सा कोई पुश करने वाला मिल जाता तो आगे बढ़ जाता वो उसके पास नहीं है। वैगोत्स्की कहता है एक दूसरी कैटेगरी है ना, लर्नर्स की, जिसके पास देयर इज प्लेंटी ऑफ रिसोर्सेज, ही और शी हैज नो एनी प्रॉब्लम ऑफ रिसोर्सेज। 2 टीचर चाहिए, 4 टीचर चाहिए, 5 टीचर चाहिए, 10 टीचर चाहिए, जिस टॉपिक पर टीचर चाहिए आपको ले लो। पेरेंट्स के पास पैसे की कमी नहीं है, जो किताब खरीदना किताब खरीदो, पैसे की कमी नहीं है। हाँ, स्टडी रूम जैसा बनाना चाहते बना लो, वो सारी फैसिलिटी दे दिया। हाँ, अब जाहिर सी बात है टीचर, जिस टॉपिक पर टीचर चाहिए तो ले लो, तो हम क्यों मेहनत करें भाई। बच्चा को होता है ठीक है समझ में नहीं आ रहा है तो बस किताब रखा, पेन रखा, सर से पूछ लेंगे, जब आएंगे 4 बजे क्लास में पूछ लेंगे। तो वैगोत्स्की कहता है वो भी ठीक नहीं है, उसका डेवलपमेंट तो होगा नहीं सही से, क्योंकि नाउ ही और शी इज डिपेंडिंग अपॉन अदर सोर्सेज and not putting their full efforts so that they can grow mentally, intellectually, कर ही नहीं पाएंगे वो। इसलिए वैगोत्स्की कहता है इन दोनों जोन के बीच पे रखो बच्चे को, न तो उसको बिल्कुल अपने हाल पे छोड़ दो कि किसी तरह का सपोर्ट सिस्टम उसके पास बिल्कुल नहीं है, न तो उसको फुल ऑफ ऑल काइंड ऑफ सपोर्ट दे दो उसको, जिससे कि अपना एफर्ट करना वो कम कर दे। दोनों जोन के बीच में रखो बच्चों को, जोन ऑफ प्रोक्सिमा, वहां पर बच्चे का डेवलप सबसे ज्यादा होगा, वहां पे वो सारी की सारी चीजें। तो बहरहाल एक टीचर अगर मल्टीडिसिप्लिनरी होगा, है ना, तो फिर अपने आप हर तरह का सपोर्ट आ जाता है बच्चे के अंदर। टीचर का मल्टीडिसिप्लिनरी हो गया तो, है ना, कई तरह के इश्यूज, कई तरह के प्रॉब्लम्स, कई सब्जेक्ट के प्रॉब्लम वो सॉल्व कर सकता है वो बच्चे का, जिस कुछ हद तक, ऐसा नहीं अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड तो सारा करेगा ही करेगा, है ना, करेगा। So these are various ways through which we can integrate children's learning, scholars' learning, students' learning, and enhance their achievement and attainment of different, aspects of their personality, whether it is cognitive in nature, whether it is affective in nature, and whether it is psychomotor in nature. And hence we can promote holistic education and multidisciplinary education as we have in the policy of education, that is NEP 2020. I think this is 7:15. We have 15 minutes now from, so it is better I stop my, communication, and now I welcome you all for your question, for discussion, for any kind of observation that you have. So I think it is better I stop at this point, and request all of you to come forward, and if you have any question, you must ask question. If you have any observation, you must put your views, because we all are here to learn from one another. So now we welcome for the question hour, for the observation hour, and for discussion deliberation. So thank you so much for a patient listening to the lecture. Thank you so much. Yes. House is open for discussion and questions. If there is any question, you can ask. You can raise your hand, or you can unmute yourself and ask question. Even you can give your suggestion only. You can give your observation. There is no issue at all. Question is not essential. If you have question, welcome. Sir, you talked. Yes, madam. Yes, please. Sir, you talked about social relations within classroom between teacher and student, है ना? Yes, so, yes. Sir, yes. What these days, especially in colleges in which we are teaching, the number of students is so large. It is around more than 100 students. It even reaches to 150. So how is it possible to develop social relations in that scenario? Okay, when we talk about social relation, it doesn't mean that you need to develop one-to-one relationship. Social relation means developing a climate, the school climate, the classroom climate, wherein students can, without any hesitation, come forward and ask their queries, and forward their questions to you, and can contact you for solving their own problems. The problems may be related to their education, to their academics, and even personal problems. So if the relationship between the teacher and the student is sound, and
if there is no any such barrier which stop students coming forward to meet their teacher, then it is bad. So, if the strength is very high, as you say, you're saying 100 students or 150 students and 200 students, maybe you are using mic to communicate with the learners, है ना? But if you have developed a kind of impact on the learner, है ना? Then they will be having positive impact of your personality, of your interrogation, and of your communication, that all of them will come forward to attend your classes and will ask you question and their queries in a better manner. This is very important, this is important. One-to-one relation is not very important in such cases. But if the class size is small, suppose we have just 10 students or 15 students or 20 students and 40 students, then of course we can have one-to-one relationship. We can have. That's right. We can develop, different kinds of a small group. We can develop a small group discussion in the classroom. A group, five students ka group, and they can also have kind of interaction, kind of discussion, mediated by and moderated by the teacher themselves. Right. So that is required to be developed. Okay. Thank you so much, sir. And your lecture Thank was you. really proficient and very informative one. Thank you so much, sir. Thank you, madam. Thank you so much. Any other Nice. participant wish to ask any question or query with sir? Any other participants? I wanted to ask one question. Ji, Yes, Talukdar ma'am. welcome. Yes. Sir, today, since we know that our lives are now being dictated by this digital technologies, so and young children are exposed to the technology from a very infant stage. So how can we develop that original thinking and all in today's age, sir? Is not our new generation being over dependent on digital technology? Okay, very brilliant question that you have asked, madam. Very brilliant question. और Thank दो you, चीजें sir. मेरे दिमाग में आ रही है, दो बातें automatically comes to my mind, है ना? One, you have talked about original thinking. This is very important, है ना? Because nowadays we are looking towards and we are, there is rush towards learning the use of artificial intelligence, है ना? PowerPoint presentation बनाना हो या फिर आपको chat GPT बहुत मशहूर हो गया आजकल, है ना? आप बहुत सारे आर्टिकल, पेपर्स और रिसर्च पेपर्स वगैरह बहुत सारी चीजें करा सकते हैं. तो देयर इज ऑफ कोर्स ए थ्रेट टू ओरिजिनल थिंकिंग, इसमें कोई शक नहीं, थ्रेट है ओरिजिनल थिंकिंग के ऊपर. इफ यू डिपेंड अपॉन chat GPT and artificial intelligence in doing all these work, of course your own skill will not be enhanced. We will be suffering from these capabilities to develop. ये तो होगा ही होगा, और ये हो चुका है. अब अभी मैं if I ask one question to all of you, how many mobile numbers that you can recall of your friends, your family members? तो शायद आप हैरान हो जाएंगे कि आप अगर अभी सोचना शुरू करोगे तो आपको एक दो से ज्यादा मिलेगा नहीं मेरे ख्याल में. हमसे पूछोगे तो मुझे तो सिर्फ एक ही फोन नंबर याद है जो मेरी वाइफ का है ना? बाकी इसके अलावा आफ्ताब साहब के भी नंबर याद नहीं है. इनको फोन करना होता है तो मैं मोबाइल में सर्च करता हूँ, आफ्ताब साहब नाम डालता हूँ, देखता हूँ किसका आ रहा है. So this has become this is the impact of artificial intelligence and digital technology. हमारी मेमोरी को कमजोर कर दिया है, हमारे जहानत को, हमारी बुद्धि को कमजोर कर दिया, क्योंकि हम यूज करने वाले बन रहे हैं. हम जो कहते हैं ना ओरिजिनल थॉट्स वाली बात जो करते हैं वो उस तरह का थिंकिंग नहीं है. लेकिन दूसरी बात करें अगर हम इफ यू थिंक इन लिटिल डिफरेंट डायरेक्शन, तो आपको ये मानना पड़ेगा फिर कि बगैर ओरिजिनल थॉट के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आया कहाँ से? जिस आदमी ने इसको इन्वेंट किया, डिस्कवर किया, आपके लिए, हमारे लिए बनाया, G5 टेक्नोलॉजी तक हम दुनिया को ले गया, और गूगल मीट के थ्रू हम जो बैठे बात कर रहे हैं, अभी इंटरेक्ट कर रहे हैं, ये लेक्चर हो रहा है, ये भी तो ओरिजिनल थिंकिंग का नतीजा, ओरिजिनल थिंकिंग का नतीजा है, एक्सपेरिमेंट का नतीजा है. तो दोनों तरह की चीजें हैं. जो लोग काम करने वाले हैं उनके ओरिजिनल थिंकिंग को सफर करेगा नहीं, वो डेवलप करते रहेंगे. और हम लोग जो सिर्फ यूज करने के उस पर रह जाएंगे तो फिर आप यूज करते रहेंगे. सो द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन द शोल्डर ऑफ द टीचर इज वेरी हाई. हमको बच्चों को आदी नहीं बनाना है कि यूज करने वाला, हमको इसको डेवलप करने वाला बनाना है, क्रिएटिव बनाना है. मैं एक इंटरव्यू सुन रहा था, तकरीबन आज से 15-20 दिन या 1 महीना पहले. पाकिस्तान के 2 एक्सपर्ट थे, आपस में बात कर रहे थे, इसी पर बात हो रही थी
कुछ चैट जीपीटी से लेकर के, और बड़ी इट वाज वंडरफुल टॉक दैट आई लिसन टू। और मुझे एक बात उसकी सबसे ज्यादा अच्छी लगी कि शायद आपको भी पसंद आएगी, मुझे नाम याद नहीं वो लोग कौन थे, एक्सपर्ट थे अपने अपने फील्ड के, एक तो उसमें सोशल साइंटिस्ट भी थे। उन्होंने एक बात कही जो मुझे अपील की, शायद आपको अपील करे या ना करे। उन्होंने कहा कि नेचर जो है, नेचर ऑलवेज गिव्स एन अपॉर्चुनिटी टू द जनरेशन टू एडजस्ट इन द सोसाइटी इन ए बेटर फैशन। नेचर मौका देता है आपको समाज के अंदर, माशरे के अंदर, दुनिया के अंदर आपको बेहतर करने का, एडजस्ट होने का और दूसरे के मुकाबले आगे निकल जाने का। अभी उन्होंने एग्जाम्पल दिया, उन्होंने बड़ा अच्छा एग्जाम्पल दिया। कहा कि जब देखिए प्रिंटिंग प्रेस जब आया दुनिया में पहली बार, अगर आप प्रिंटिंग प्रेस का इस्तेमाल कर ले, जो कंट्री, जो मुल्क जो इसने इस्तेमाल किया, जिसने टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किया, वो दुनिया में आगे निकल गया, है ना। जो गरीब थे वो अमीर हो गए, जो लोअर लेवल पे थे, मिडिल लेवल पे थे, हाई लेवल पे चले गए। तो उसको नेचर ने एक मौका दिया। उसी तरह से वो कह रहे थे कि जो डिजिटल टेक्नोलॉजी है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, चैट जीपीटी का दौर है, ये भी अपने आप में लेवल प्लेइंग फील्ड का दौर है। लेवल प्लेइंग फील्ड, अभी इस लेवल बराबर हो गया है। जो लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बेस्ड टेक्नोलॉजी पर मेहनत करेंगे, तो जो अगर पीछे रह गया होगा, उसको ये नेचर ने मौका दे दिया है कि तुम एआई बेस्ड टेक्नोलॉजी को अच्छे से सीख लो, तो जो तुम्हारे डिपार्टमेंट में, तुम्हारे यूनिवर्सिटी में और तुम्हारे जानने वालों की सर्किल में जो बहुत बड़ा तोप आजकल बन रहा था, तुम उस तोप से आगे बढ़ सकते हो। तो यू हैव द चांस, यू हैव द अपॉर्चुनिटी टू गो ahead of others if you become competent enough in this particular technology which has just now evolved. So the nature is giving you chance to cover up and play in the level playing field and go up stairs. ये एक मौका देता है आपको। तो इस तरह से दोनों बातें हैं। आप मैडम ने जो कहा है ना, ठीक है, we can create such an opportunity wherein we should not be in a position to seize the original thinking of the learner. This is very important. Thank you, sir. Okay. Thank you so much. Thank you, sir. ये जो बात आपने लास्ट में कही कि चैट जीपीटी इज एन अपॉर्चुनिटी एंड चैलेंज बोथ साइड बाय साइड, डिपेंड करता है कि कौन इसको हार्नेस कर ले और कौन इसको देखता रह जाए। इन बातों से मुझे दो लाइनें अभी एपीजे अब्दुल कलाम की याद आ रही है कि तरक्की के इस दौर में जो पिछड़ गया वो हमेशा पिछड़ा रहेगा। शायद वो इन्होंने इसी सिचुएशन के लिए उन्होंने ये बात कही थी कि जो भी इस दौर में पिछड़ गया वो हमेशा पिछड़ा रहेगा, वो फिर स्पीड को नहीं पा सकता है। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस, सर। Thank you again for on behalf of HRDC MU. You apart from and even in spite of you have so many challenges of electricity and other even non-SE situation. I'm sorry, I could not open my camera. नहीं सर, इस ह्यूमिडिटी के कंडीशन में भी आप हमसे जुड़े रहे हैं और पूरी जोश खरोश के साथ अपने लेक्चर को हमारे पार्टिसिपेंट तक पहुंचाया, सर उसके लिए मैं बेहद शुक्रगुजार हूँ। और थैंक यू वेरी मच सर ऑन बिहाफ ऑफ HRDC MU। हम सोचते हैं कि आप नेक्स्ट लेक्चर में भी होंगे सर और हमारे पार्टिसिपेंट्स को ऐसे ही इनलाइट करते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू। Wish you all the best. Thank you participants. We will see you tomorrow at the same time for the 2 more lectures with new speakers. Thank you very much. Thank you, sir. माइक ऑफ नहीं हो रहा है।